Dear student, welcome to online classes. We are going to start second year English prose section. Our first chapter is 20 Minutes with Mrs. Okentum by Frank Arthur. I again repeat, our first chapter is 20 Minutes with Mrs. Okentum by Frank Arthur. This chapter is very important from examination point of view. We will read out all the important details of this chapter. So let's start 20 Minutes with Mrs. Okentum by Frank Arthur. We will discuss important question answer and a paragraph explanations and word meaning and overall summary of the chapter. So let's start chapter number 1. We are going to start 20 Minutes with Mrs. Okentum by Frank Arthur, chapter number 1. Now let's start. Let's start. Now see, we are going to start. This masterpiece is written by Frank Arthur, civil servant and a famous novelist and playwright. Now 20 Minutes with Mrs. Okentum is a melodrama written by Frank Arthur. Frank Arthur was famous civil servant, novelist and playwright. This play is a melodrama. Melodrama जिसमें suspense होता है and with a tragic plot about he is a character who loses his happy family due to reckless driving of Mrs. Okentum in a fit of drunken state. Now he loses his family, this is a melodrama in which tragic plot, mentioned, and later on having a bet of £5 with a rotten set of people, she takes two innocent lives and destroyed the whole family of the he. Characters, important characters in the melodrama. In chapter number 1, 20 Minutes in Mrs. Okentum, this play consists of three important characters: he, she, and Porter. Porter कुली को बोलते हैं, and two he and she names are not mentioned. Now see, this masterpiece written by Frank Arthur, famous civil servant, novelist, and playwright. 20 Minutes with Mrs. Okentum is a melodrama. It is a tragic plot about he. He is the name of a character who loses his family due to reckless driving of Mrs. Okentum in a fit of drunken state, having a bet of £5 with the rotten set of people. She takes two innocent lives and destroyed the whole family of he. And this is the brief outline of the story and the characters. This play consists of three characters, as we mentioned: he, she, and Porter. Now see, scene. Stormy winter's evening. Story start with the scene stormy winter evening. बाहर जो है जैसे बारिश हो रही होती है, and important characters as we discussed: he, she, Porter, जो कुली होता है. Now Porter is a humorous character. Porter एक मज़ाहिया character है इस melodrama में. We will also discuss character of Porter in detail as well. Now see, first before starting a story, before starting the melodrama, we will discuss what is melodrama. Melodrama, a sensational romantic piece with exaggerated characters and exciting events intended to appeal to the emotions. Now this is the definition of melodrama. And what is suspense? State or feeling of excited or anxious uncertainty about what may happen. This is the definition of suspense. Now let's explain these two important definitions. First, melodrama. Melodrama is a dramatic piece with exaggerated characters and exciting event intended to appeal the emotion, in which suspense. At the end of the story, we never realize that what will happen in the story, and till end, after watching the whole melodrama, whole story, whole scene, then at the end we realize that even we become confused to realize what will happen, and suddenly something happened, and we even don't think of that.
This is a dramatic piece with exaggerated characters and exciting events intended to appeal the emotion. Sometimes tension built up, sometimes relax. So this is all about the melodrama and suspense, feeling I'm excited or anxious, uncertainty. Sometimes anxious feelings, anxiety, sometimes feeling of excitement. So this all depend upon the characters about what may happen and all the happening ups and downs and dramatic, like sometimes tension built up, sometimes relax, that we have, we will discuss all about the story later on. So now let's start further. Let's start at the important point. Now see, melodrama and suspense, as we have discussed. She, native town, Stanthorpe, means she lives at Stanthorpe. We characters, the character we have mentioned, he is a stranger, ajnabi ek hota hai, both waiting for train. He and she, they both, they both are waiting for train, and she lives at Stanthorpe. And the importance of label and suitcase, character of Porter, and Porter as a humorous character. Now let's discuss. Now, the story starts in a winter evening when she came carrying a suitcase, and she is waiting on a platform because she is going to Stanthorpe, and she lives at Stanthorpe. He also came in rain, and he is also going to Stanthorpe. Both are a stranger. He and she both are a stranger, both waiting for train, and train is 20 minutes late. Now, what happened? A lady, she is carrying a suitcase on which label is attached. On the label, the name is written Mrs. Judy Ockendom, and character of Porter. Now Porter, arrange like there was a rainy season, and Porter took the luggage, and Porter says that this job is fit for a shaggy dog, and he became uncomfortable with his job, and look like uncomfortable, and he just took the luggage, and some funny, like look like funny characters, and say some comments that like arrange the arrange the place over there on a platform for both the strangers, and as a humorous character, as we have mentioned in this melodrama 20 minutes with Mrs. Ockendom. Now we have discussed that both are, he and she both are waiting for train, and train is 20 minutes late, and Porter is a humorous character. He said that Porter said that this job is fit for a shaggy dog, and overall Porter feel uncomfortable, and but look like funny face and happy, and like this is a melodrama, as we have mentioned, in the suspense in it. So we have discussed. Let's discuss the important point. Now see, she in a drunken state tried to overtake a bus, and suddenly a lorry came. While in order to save her life, now let's see what she did. She killed two innocent pedestrian. Pedestrian कह रहे हैं जो लोग पैदल जा रहे होते हैं. Wife and daughter of he. Now the important point we have discussed. He decided to take revenge later on. Another important point, due to wealth and influence, she got 18 month imprisonment. सजा जिसे कहते हैं, only for two, 18 month imprisonment only for two deliberate murder. When he saw label on the suitcase, she tucked the label under the flap. It means the importance of label. Now see what happened. As we have discussed that they both were, he and she were going to Stanthorpe. She in a drunken state tried to overtake a bus, and suddenly lorry came. While in order to save her life, she killed two innocent pedestrian, wife and daughter of he. Actually, she committed, two murder, like in fit of drunken state, and with a bet of 5 pound with the rodent set of people. इन्होंने जो
रास्ते में जो लोग होते हैं आवारा, इनसे 5 पाउंड की शर्त लगाई हुई थी कि स्टेनथ्रॉप से कॉर्नर तक, जैसे जो ब्लाइंड कॉर्नर या इस तरह का रोड है वो क्रॉस करेगी कोस्ट तक, एंड जो रीजनेबली इनका डिस्टेंस हाफ एन आवर में भी पॉसिबल नहीं होता है, उन्हें 15 मिनट तक का जैसे जो है का। तो ये जो मिसेज लाइक शी try to cover the distance and in a fit of drunken state, हुआ ये कि ये अपनी गाड़ी को जैसे ही फास्ट ड्राइव कर रही थी, सडनली बस को उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश की, सामने लॉरी आ जाती है। अब इनके पास एक चांस था, या तो लॉरी से टकराए और अपनी जान चली जाए, या तो फिर अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड ले। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया इन ऑर्डर टू सेव अवर लाइफ, इन्होंने अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड लिया। वहाँ पे ही की वाइफ और डॉटर जो होते हैं उनके गाड़ी के आगे आ जाते हैं और लाइक इन दोनों की डेथ हो जाती है। लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। अब वो इसीलिए जो है स्टेनथॉर्प जो है जा रहा है। तो इनकी नज़र जो है एक लेबल पे पड़ी थी जिसके ऊपर मिसेस जूडी ओकेंटम लिखा हुआ था, और हुआ ये था कि ये जो मिसेस जूडी ओकेंटम लिखा होता है, तो जैसे ये आदमी जो होता है उनकी नज़र जब लेवल पे पड़ती है, एंड ही आस्क्ड फ्रॉम शी, डू यू नो मिसेस जूडी ओकेंटम? तो फिर मिसेस जूडी ओकेंटम का जब ये पूछता है, लेडी बिकम कंफ्यूज्ड व्हाई शी इज आस्किंग अबाउट जूडी ओकेंटम। उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई नो शी लिव्ड एट स्टेनथ्रॉप, और लाइक दोनों की जो अपीयरेंस होती है, पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है। शी लुक लाइक अ वाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन एंड ही एज ए लुक लाइक ए किलर टाइप ऑफ मैन। और सम टाइम आपस में इनकी कन्वर्जेशन होती है कि सम टाइम कैजुअल मीटिंग्स जो होती हैं वो लाइफ चेंज कर देती हैं। नाउ हुआ ये कि सिर्फ 18 मंथ की शी आफ्टर कमिटिंग टू मर्डर 18 महीनों की सजा हुई, बिकॉज शी वाज वेरी रिच लेडी। एंड later on when he saw the label on the suitcase, she tucked the label under the flap. Why she tucked the label under the flap? Now because we will discuss it important later on in the coming story as well. So in this slide we have discussed that in a drunken state she tried to overtake a bus and she committed to murder, and later on because the murder pedestrian were wife and daughter of he, and he decided to take revenge, and due to wealth and influence she got only 18-month imprisonment, and he thought that this is not a justice, so he decided to take revenge from a lady. Now we are going to read important point. Actually what happened, actually he got the name of a lady who murdered his wife and daughter. Actually ये सब मिसेस ओकेंटम ने किया था। अब वो जो लेडी थी मिसेस ओकेंटम थी। ये इसमें सस्पेंस यहाँ तक था, ये कैसे इस लेडी ने ये किया और इस आदमी को कैसे पता चला। एक्चुअली हुआ ये, जैसे उन्होंने एक पहले न्यूज़पेपर में एक फोटोग्राफ देखा था और उन्हें पता चला कि ये जैसे शी इज़ अ बनाना ब्लॉन्ड एंड जैसे अंडर 8 स्टोन और लुक लाइक एक्ट्रेस, एक लेडी मिसेस ओकेंटम जिसने सब कुछ किया है। तो फोटोग्राफ उन्होंने देखा हुआ था और इट वाज डार्क, एंड सडनली जब उनका नाम वो पढ़ लेता है लेबल पे तो उसे कंफर्म करना चाहता है। व्हेन ही आस्क्ड फ्रॉम द लेडी कि ये सब कुछ आप उनको जानती हैं, मिसेस ओकेंटम को उन्होंने मर्डर किया ये सब कुछ। तो मिसेस ओकेंटम ने सोचा कहीं इस आदमी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया है, जो लेडी जो हम जिसको शी पढ़ रहे थे। एक्चुअली व्हाट मिसेस ओकेंटम डिड, शी ट्राइड टू टक द लेबल अंडर द फ्लैप। नाउ ही कंफर्म दैट ये लेडी वही है मिसेस ओकेंटम। या जब उसने लेबल छुपाया जिसमें नाम लिखा हुआ था, जब वो आदमी इनसे पूछताछ कर रहा था तो उन्हें कंफर्म हो गया कि ये मर्डर मिसेस ओकेंटम ने किया है और वो लेबल छुपा रही है। शी प्लेड अ ट्रिक टू सेव हर लाइफ। Later on what happened, actually इससे पहले जैसे हमने यहां तक जैसे स्टोरी पढ़ी, अब इसमें देखें हुआ क्या है। हुआ ये था कि एक 1953 में एक इंसिडेंट हुआ था। एक्चुअली he wanted to die and before taking revenge he wanted to die in
कोरिया 1953 एक जैसे छोटी लड़की जो उनकी बेटी की एज जितनी थी, and he was wounded and on the ground and waiting for the water, and he was seriously injured and he wanted to die. सडनली हुआ ये कि वो जो उनकी बेटी की एज जितनी लड़की होती है वो उनके करीब आती है, और उनको देख के इस आदमी को एक एहसास होता है कि अगर उनकी बेटी जिंदा होती, लुक लाइक द सेम एज एंड सेम गर्ल, तो वो उन्हें जो है इससे रियलाइज होता है कि अब मैं मरना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डाई, आई वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लेडी जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने 2 मर्डर किए हैं। तो फिर ये जो है जैसे ही वो आदमी सोचता है तो ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। जब वो रिवेंज लेने का सोचता है, मिसेस ओकेंटम को मारने के लिए रेडी होता है, और बीच में पॉर्टर आ जाता है। अगेन पॉर्टर सेड दैट ट्रेन इज लेट, और जो है ट्रेन थोड़ी देर और लेट है। उसके बाद फिर ये होता है कि शी प्लेड अ ट्रिक टू सेव हर लाइफ। नाउ शी रियलाइज दैट अब कोई बचने का इतना रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो व्हाट शी डिड नाउ, एक ट्रिक वो प्ले करती है मिसेस ओकेंटम कहती है, blot out that picture which revolve in my mind, kill me, kill me, that is my real punishment. वो लेडी कहती है, मिसेस ओकेंटम कहती है कि आप मुझे मार दें, मेरी सज़ा यही है कि आप मुझे मार दें, किल मी, दैट इज़ माई रियल पनिशमेंट बिकॉज आई वांटेड टू डाई। और ये हमेशा मेरे जहन में पिक्चर गूंजती रहती है, जिस तरीके से मैंने मर्डर किया, और ये सब कुछ जो है, पहले वो कहती है इट वाज नॉट अ मर्डर और मुझे सज़ा भी हो चुकी है, बट वो आदमी नहीं मानता। फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने जो कुछ किया एक्चुअली आई वाज ड्रंक और ये सब। उसके बाद फिर जो है वो कहती है कि आप मुझे मार दें, मैं यही चाहती हूँ। नाउ द ही रियलाइज दैट अगर मैं मिसेस ओकेंटम को मार दूंगा तो दैट विल नॉट बी माई रिवेंज, बिकॉज ये वही चाहती है कि आप मुझे मार दें। हर रियल पनिशमेंट इज टू लिव, इनकी सज़ा यही है कि ये जिंदा रहे। कन्वर्जेशन होती है एक्चुअली शी सेड दैट आप रिवेंज क्यों लेंगे, जो है रिवेंज एक्चुअली जो है जिसने ये जो कुछ किया है गॉड उन्हें खुद पनिश करेगा। अंडरस्टैंड? सो किल मी, ब्लॉट आउट दैट पिक्चर, ये जो है। उसके बाद व्हाट ही डिसाइडेड टू फॉरगिव मिसेस ओकेंटम, और वो कहता है कि अब आपकी सज़ा यही है कि मैंने आपको माफ़ किया, एंड ही डिसाइडेड टू फॉरगिव। इनने क्या किया, ही ने जो है मिसेस ओकेंडम को धक्का दिया और वहाँ से जो है ट्राई करता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, एंड ही फॉरगॉट हिज सूटकेस। फाइनली होता ये है, जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, मिसेस ओकेंडम बिकम हैप्पी, और वो खुश हो जाती है, बिकॉज शी प्लेड अ ट्रिक। इन्होंने कहा कि आप मुझे मार दें और मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती, मेरी यही पनिशमेंट है। उस आदमी ने सोचा कि इनकी रियल पनिशमेंट यही है कि मैं इनको जिंदा छोड़ दूं और इनको नहीं मारूं, बिकॉज ये खुद ऐसा चाहती है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस ओकेंडम बिकम हैप्पी एंड शी स्टार्टेड डांसिंग, मूविंग हियर एंड देयर। लेटर ऑन वो आदमी अपना सूटकेस भूल जाता है। जैसे ही देखता है मिसेस ओकेंडम बहुत खुश है, what he did, he pick out revolver, shooter। वो आदमी रिवॉल्वर निकालता है, मिसेस ओकेंटम को शूट करता है, अपना सूटकेस लेता है और वहाँ से चला आता है। दैट इज सरप्राइज एंडिंग ऑफ द मेलोड्रामा। हमें ऐसे लगा कि वो आदमी मिसेस ओकेंटम को बख्श देगा फॉर टू डेलिब्रेट मर्डर, और उन्हें लगा कि ये लेडी जो है इनको पछतावा है, शी रिपेंट ओवर व्हाट शी डिड, और उनको 18 मंथ की सज़ा हुई है, बट वो उसे नहीं मान रहा था। फिर भी जब लेडी ने कहा तो वो एग्री किया उसने। बट सडनली जब वो देखता है कि मिसेस ओकेंटम इज इन हैप्पी मूड एंड शी इज़ डांसिंग, और ये सब एक ट्रिक थी, एक ऐसी ड्रामा था, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने रिवॉल्वर निकाला एंड ही किल्ड मिसेस ओकेंटम एंड टुक रिवेंज। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस, नाउ इस पूरी मेलोड्रामा में जो सस्पेंस रखा गया है, कि जैसे हमने स्टोरी रीड आउट की कि मिसेस ओकेंटम जैसे जो है उन्होंने जैसे मर्डर किए, और उन्होंने कहा ये मर्डर नहीं था, एक्सीडेंट था, अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। तो उन्होंने अदालत में झूठ बोला, उनको सिर्फ 18 महीनों की सज़ा हुई, और उनके पैसे की वजह से, बिकॉज ऑफ रिच इन्फ्लुएंस। जब वो आदमी देखता है, रिवेंज लेना चाहता है,
तो देखें इसमें जो सस्पेंस है, विल ही फाइंड आउट हू शी इज। पूरे प्ले में हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी तलाश में रहता है, मिसेस ओकेंडम की, और फिर वो ढूंढ लेता है। जब वो लेबल देखता है, ऑडियंस रियलाइज व्हेन शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप, और उसके ऊपर नाम लिखा होता है, तो वो फिर जो है कंफर्म हो जाता है। ये एक पॉइंट सस्पेंस है। सेकंड जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें सस्पेंस रखा गया है, विल ही किल हर, क्या वो आदमी उसे मारेगा? आखिर में हमें लगा ऐसा नहीं है और उन्हें माफ कर दिया है, बट सडनली ही फॉरगॉट अ सूटकेस एंड सडनली वो रिवॉल्वर निकालता है, देखता है मिसेस ओकेंडा में एक ट्रिक प्ले की है उसने, ये सब कुछ ऐसे ही ड्रामा था। तो फिर उन्होंने जो है रिवॉल्वर निकाला एंड फायर किया, और फिर जो है शूट किया, मिसेस ओकेंडम की डेथ हो गई और उन्हें अपना रिवेंज ले लिया। तो ये हमने थ्रू आउट द स्टोरी इन द मेलोड्रामा, ये हमने 2 पॉइंट्स जो है सस्पेंस नोट डाउन किए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस द ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ मिसेस ओकेंडम। जैसे हमने इसमें स्टोरी में आपको फर्दर हेल्प होगी ज़्यादा समझने में। एक्चुअली मिसेस ओकेंडम इज़ वेरी श्यूड, शार्प एंड डिसीटफुल लेडी। मिसेस ओकेंडम एक डिसीटफुल लेडी थी, शार्प लेडी थी। Once she get drunk in a cocktail party, or as we have studied in a story, and they drive her car in a very rash manner to win a bet, इन शत जीतने के लिए अपनी कार को बड़ा रैश मैनर में चलाया। कॉन्सिक्वेंटली शी ओवरटर्न्स फुटपाथ, जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी जान बचाने के लिए, एंड किल्ड अ वुमन एंड चाइल्ड। जैसे जो ही की वाइफ और डॉटर जो उनका मर्डर होता है। व्हेन शी फेसेस द मैन इन द वेटिंग रूम, जैसे वो आदमी जब रिवेंज लेने आता है वेटिंग रूम में जब वो उनकी कन्वर्जेशन होती है, एंड नोज हिम टू बी द फादर ऑफ अ गर्ल, जब उन्हें पता चलता है कन्वर्जेशन में शी हैड किल्ड, जिस लड़की का जिसने मर्डर किया, जिसकी वाइफ को मर्डर किया, वो उस आदमी की वाइफ एंड डॉटर है। जब ये पता चलता है लेडी को, शी एक्सप्रेसेस अ रिमॉर्स ओवर दैट, एंड एक ट्रिक प्ले करती है। she had done what she had done, she repent over that, and but she is not sincere in her expressions। वो आदमी देखता है कि ये जो कुछ कह रही है, ये इनके एक्सप्रेशंस जो है उसमें सिंसियरिटी नहीं है, expressions of sorrow। that is why man sees through her cunningness। जब वो देखता है कि ये सब एक ड्रामेबाजी और सब कुछ चीज़ें जो उन्होंने जो कुछ किया, एक ट्रिक प्ले की है, तो फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है एंड किल करता है एंड शूट हर टू डेथ। Understand, that is the important point that we have studied। इसी तरह एक और इसमें ब्रीफ कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है, वो पॉटर का है, जो कुली होता है ना। उसी पॉटर का बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कोई मूवी में, जैसे इस तरह का कोई सीन होता है, जैसे अमूमन कोई मर्डर या ऐसी चीज़ होती है, तो सडनली बीच में देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट आती है, और या किसी फनी कैरेक्टर को बीच में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि ग्लूमी एटमॉस्फेयर को जो है ना उसमें कम्प्लीटली, जैसे हम लोग जब मूवी देख रहे होते हैं या ट्रेजिक कैसी, तो हम कम्प्लीटली उस ग्लूमी एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए ये सब कुछ मजाहिया कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। The porter is partially drawn character, much of action in the play just bring the lady passenger into the waiting room, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये kind hearted man होता है, feel joy in providing comfort to the passenger, and a sense of humor and by witty remarks made other people laugh। अपने जो funny remarks से दूसरे लोगों को हंसाना। एक funny character होता है, is very much conscious of his hard job, और मैंने आपको बताया, वो कहता है कि this job is fit for a shaggy dog and he has to do anything that his job is only fit for a shaggy dog। but आफ्टर ऑल ओवरऑल अगर देखा जाए, पॉटर का जो कैरेक्टर फनी कैरेक्टर होता है, वन हैज़ टू डू समथिंग फॉर असिस्टेंस, है कि हेल्प के लिए जो है इनका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है उसकी। इसी तरह अब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो द मैन, दी ही का जो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर ही का, जिसका नाम नहीं बताया गया, द मैन इज प्रेजेंटेड इन द प्ले इज एन एक्सट्रीमली हार्श एंड अनगॉड पर्सन, बिकॉज वो आदमी जो है रिवेंज लेना चाहता है। प्रीवियसली पहले हमने देखा कि वांटेड टू डाई, और कोरियन गर्ल इंसिडेंट के बाद उसने डिसाइड किया ना वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम अ लेडी, थोरली अनमैनर्ड इन माय व्यू एज ही ट्रीट मिसेस ओकेंडम विद हेटर्ड एंड कंटेम्प्ट। जब उन्हें पता चलता है कि मिसेस ओकेंडम ने उनकी वाइफ एंड डॉटर का मर्डर किया, थोड़ा अनमैनर्ड के साथ वो डील करता है मिसेस ओकेंडम को, और फ्रॉम his dress and his speech he appears to be back clerk or superior artisan, एक clerk टाइप लगता है ड्रेस से।
but it's definitely lower in the social scale as we have seen, और उसकी ड्रेस से हमने अंदाज़ा लगाया as compared to Mrs. Ockendam, because Mrs. Ockendam was a lady of a prosperous businessman, और this man is clean shave and wearing a trench coat जो अमूमन बारिश में पहना जाता है, and soft flared hat with a broad brim, and he treat Mrs. Mrs. Judy Ockendam rather shabbily, and he should have better like how to deal with a lady, but ये character little bit जो harsh होता है and mannered, and बिकॉज उनकी वाइफ एंड डॉटर का मर्डर हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे थे। तो ये हमने कैरेक्टर डिस्कस किया। नाउ मैन शुड, आगे इसकी जो एक कुछ पॉइंट्स और हैं, द मैन शुड हैव बीन मैग्निमिनस टू मिसेस ओकेंटम, ऐसा उनको होना चाहिए था। लिटिल बिट कैरेक्टर्स जैसे इतना हार्शली डील नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव लुक्ड अपॉन द एक्सीडेंट एज एन एक्ट ऑफ गॉड, बट जिस तरह से माइनर जैसे एरर होता है, गलती होती है इंसान से, he should be reconciled to his fate, instead he chooses to, ये opinion जैसे उनको अपनी किस्मत पे, अब जैसे कहते हैं रिकॉन्साइलेशन करना, कोई ऐसे पछताव ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सुलह करना, बट एक्चुअली वही शूट मिसेस ओकेंडम इन कोल्ड ब्लड, और वो रिवेंज लेता है। उन्हें लगता है कि व्हेन कोर्ट अनेबल टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल, पीपल टुक लॉ इनटू देयर ओन हैंड, इसी तरह वो डिसाइड करता है कि मुझे रिवेंज लेना। Now we are going to reading, going to read important word meaning. Gilson. Gilson means shine. जैसे चेहरा चमकना, शाइन करना, चमक होना। मीकली, जेंटली, सबमिसिवली, एंड फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब शोई होना, जैसे कोई दिखावा जैसे होता है ना, ऑस्टेंशियस। एंड पेग आउट का मतलब डाई। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूछते हैं पेग आउट का मतलब डाई। वेंजिस बदला लेने को कहते हैं, टू टेक रिवेंज। फैसिनेटेड, ऑस्ट्रक, कैप्टिवेटेड। एंड मॉइस्टन का मतलब ह्यूमिडिटी होना, डैम्पन, और जैसे बारिश में जैसे मॉइस्चर्स वगैरह। स्ट्रॉल का मतलब लेयरली वॉक या छोटी मोटी वॉक होती है। मैनस्लॉटर, मर्डर या किलिंग को कहते हैं, खून खराबा। पेरिस्टन, जो लोग पैदल जा रहे होते हैं, ऑन द फुट जा रहे होते हैं। इसी तरह फर्दर लेट्स सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन जो है वो गुस्से को, फ्यूरी को, रिसेंटमेंट को कहते हैं। कॉम्फी, कंफर्टेबल फील करना, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इसी तरह फ्लैप, शेक करना, वेव करना, जैसे कोट वगैरह को। बैडली, डेस्परेटली, हिस्टेरिकल, लाइक पैनिक स्ट्रिकन, जैसे किसी अफसोसदा, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फीन का मतलब अफेक्टेड, बहाना करना, प्रिटेंड करना, लाइक फीन मेडनेस, मैडनेस वगैरह होती है जिस तरह से। गिलो का मतलब रिजॉइस, खुश। और इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल सोबिंग। सोबिंग का मतलब होता है क्राइंग, लाइक वीपिंग, रोना। इसी तरह वर्ड हमारा रिपेल है। रिपेल का मतलब होता है होल्ड ऑफ, लाइक वार्ड ऑफ, मजबूर करना किसी को। पंच करना। जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब होता है शेक करना, नज। एंड अल्टर, अल्टर मीन्स चेंज, किसी चीज़ को तब्दील करना। इन अ सिमिलर वे स्टेयर, स्टेयर घूरना कहते हैं, गैज। एंड ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है फेयर हेयर, जैसे मिसेस ओकेंडम का बताया गया था। लाइट कलर, जैसे हेयर वगैरह होते हैं। इसी तरह ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग जैसे वर्ड, इसमें अपसेट होना, परेशान होना, कंप्लेनिंग होना। एंड मीकली, मीकली कहते हैं जेंटली। रिकवरिंग, रिकवर करना, इम्प्रूविंग, गेटिंग बेटर। एंड ओवरकम करना, जैसे कॉन्कर करना, ट्राइम, सक्सेस, फतह करना। इसी तरह ग्रिमली, ग्रिमली कहते हैं हार्श, लाइक बिहेवियर वगैरह होना। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग रीड आउट की। नाउ चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आफ्टर 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम। ये मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एंड we will discuss it briefly in the class, further we will discuss in detail. Now let's see, जो आपको हिंट दे देता हूँ कि how to answer, एक जो है हम इसको मैं आपको बता देता हूँ। Now see, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, explain the importance of the label on Mrs. Ockendam suitcase. Mrs. Ockendam के suitcase पे क्या लेवल की इंपॉर्टेंस होती है? वाई डज शी हाइड इट? बिकॉज इट बोर द नेम ऑफ मिसेस ओकेंडम, उस पर मिसेस ओकेंडम का नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो लेबल को छुपाती है। शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप सो दैट नो लॉन्गर विजिबल टू ही।
एक और क्वेश्चन है, व्हेन इज द ऑडियंस, ऑडियंस को कब पता चलता है, व्हेन इज द ऑडियंस लाइकली टू बिगिन टू सस्पेक्ट दैट शी माइट बी मिसेस ओकेंडम। ऑडियंस को कब पता चलता है कि ये लेडी मिसेस ओकेंडम है? When she tucked the label under the flap, at that time audience realized that she is none else but Mrs. Okendam. इसी तरह what motive, motive कहते हैं मकसद को, what motive has the man for murdering her, उस आदमी का क्या मकसद था मिसेस ओकेंडम को मारने का? बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लेडी मिसेस ओकेंडम ड्यू टू मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था। नाउ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन डज द ऑथर मेक द पॉटर अ ह्यूमरस कैरेक्टर? पॉटर को इसलिए ह्यूमरस कुली को एक मज़ाहिया कैरेक्टर बनाया गया है बिकॉज इन ऑर्डर टू ओवरकम द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, जैसे मज़ाहिया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, एक फ़नी रिमार्क्स, विटी रिमार्क्स होते हैं, जिससे थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं टेंस इन्वायरमेंट में एक ओवरकम करने के लिए इस तरह के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नाउ व्हाई वाज ही गोइंग टू स्ट्रेंथरॉप? Because he wanted to see Mrs. Ockendam, he wanted to take revenge from Mrs. Ockendam, उसकी तलाश में जाता है। इसी तरह what is the significance of the incident of the Korean girl? Discuss in brief the impact of meeting on the mind of men. In 1953 ही वॉन्टेड टू डाई, एक जैसे सिचुएशन ऐसी थी कि वो आदमी मरना चाहता था। ही वॉज वेटिंग फॉर द स्ट्रेचर, ज़मीन पे जैसे ज़ख्मी पड़ा हुआ था और ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, जैसे उनके ज़ख्म ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल जैसे पेन फील कर रहा था, मरना चाहता था। उनकी वाइफ और डॉटर का मर्डर हो चुका था। सडनली एक उनकी बेटी की एज जैसी लड़की, कोरियन गर्ल होती है, शी बीन बैंडेड ओवर हिम एंड उनको वाटर वगैरह पानी पिलाती है, सब करती है। उसके बाद वो आदमी सोचता है कि ना, आई वांटेड टू टेक रिवेंज, क्योंकि अगर मेरी बेटी ज़िंदा होती तो इसी तरह होती, इस लड़की की तरह, उनकी एज भी 14 साल होती है और ये सब। उसके बाद उनके जहन जो है, प्रीवियसली पहले हमने पढ़ा कि वांटेड टू डाई, बट इम्पैक्ट ये पड़ा आफ्टर द मीटिंग, वो उसने सोच लिया कि अब मुझे ज़िंदा रहना है और बदला लेना है उस लेडी से जिसने ये सब कुछ किया। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम और मेन आइडिया ऑफ दिस मेलोड्रामा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका हम ये कह सकते हैं कि द थीम और मेन आइडिया और सबस्टेंस ऑफ द मेलोड्रामा 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम इज दैट when the court unable to provide justice to the common people, then the people took law into their own hands. जैसे यहाँ पे उस आदमी को लगा कि कोर्ट ने मेरे साथ, जज ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है, दो मर्डर किए मिसेस ओकेंडम ने, बट वो पैसे की वजह से बच गई, सिर्फ 18 महीनों की सज़ा मिली, तो इसलिए सोचा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो इन अ कोल्ड ब्लड ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम अ लेडी एंड आखिर में वो अपना रिवेंज लेता है एंड ही किल्ड मिसेस ओकेंडम। इसी तरह एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस दैट द मैन does not kill Mrs. Judy Ockendam and condemn her to live. एंड में तो मिसेस ओकेंडम की डेथ होती है, ही किल्ड, बट पहले उन्होंने उसको कंडेम किया था। हम समझ रहे थे स्टोरी यही खत्म हुई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। एंड में सस्पेंस था, आखिरी में वो मिसेस ओकेंडम का मर्डर करता है। बिकॉज व्हेन शी सेड दैट टू किल मी, शी प्लेड अ ट्रिक. She said that kill me and blot out that picture that revolve in my mind. I wanted to die. That is my real punishment. Kill me, just kill me and blot out that picture. वो आदमी सोचता है to kill her, that is not my real punishment. That is not my real revenge. I wanted to, throw that lady, that to live, to condemn her to live. और उसके बाद वो उन्हें कहता है कि आपकी यही रियल पनिशमेंट है, to live, और आप जिंदा रहें और इसी तरह पछताती रहें। तो ये जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े, ब्रीफली हमने 20 मिनट्स में मिसेस ओकेंडम जो स्टोरी पढ़ी, रिटन बाय फ्रैंक आर्थर, 3 मैन कैरेक्टर, ही, शी एंड पॉटर। एक्चुअली मिसेस ओकेंडम जैसे लास्ट में मिसेस ओकेंडम से रिवेंज लेता है वो आदमी, ही, एंड
हमने रीड आउट किया स्टोरी में, लाइक इन फिट ऑफ ड्रंकन स्टेट शी इन ऑर्डर ट्राई टू ओवरटेक अ बस, सडनली लॉरी आ जाती है सामने, अपनी गाड़ी को वो अपनी कार को जो है रैश ड्राइविंग करती है और जो लोग पैदल जा रहे होते हैं रॉन्ग साइड ले जाती है और ही की वाइफ और डॉटर की डेथ हो जाती है। उसके बाद कोरियन इंसिडेंट हमने पढ़ा और वो आदमी डिसाइड करता है कि मैं रिवेंज लूँगा, और एक सस्पेंस इसमें रखा होता है। जो 2 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, मिसेस ओकेंडम एक ट्रिक प्ले करती है अपनी जान बचाने के लिए, बट लास्ट में वो आदमी रिवेंज लेता है और मिसेस ओकेंडम का मर्डर करता है। और इसमें ये बताया गया है कि जब कोर्ट एक आम आदमी को इस तरह इंसाफ नहीं दे पाती तो लोग जो है कानून फिर अपने, जैसे ही ने कहा कि मेरे लिए यही सही है, मैं कानून अपने हाथ में लूँ, और फिर वो कोल्ड ब्लड में रिवेंज लेता है। जैसे हमने कैरेक्टर्स पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि उनको हाश लिया, इस तरह डील नहीं करना चाहिए था, और एक किस्म की रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए थी, बिकॉज एक एक्सीडेंट या मर्डर में थोड़ा सा ही एक एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है। बट उसने कोल्ड ब्लड में ही ने और एक रिवेंज लिया और हार्शली और बिल्कुल रूडली थोड़ा इस तरीके से मिसेस ओकेंडम के साथ बिहेव किया, बिकॉज ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे। तो उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि व्हेन कोर्ट अनेबल टू प्रोवाइड जस्टिस टू कॉमन पीपल, लोग फिर जैसे ही जो था उनको लगा कि मुझे कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया है, एंड फिर उन्हें ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। मेन पॉइंट ये, जब कोर्ट ने, वंस अगेन आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट कर लें, जब कोर्ट ने ही को इंसाफ नहीं दिया तो वो खुद रिवेंज लेने का सोचता है और मिसेस ओकेंडम से बदला लेता है। वो सोचता है मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, 2 मर्डर की सिर्फ कुछ महीने सज़ा, तो ये इनफ नहीं है, और उसने बदला लिया। बट हमने ये प्ले में पढ़ा कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, उनको एक हार्श वे में जो कमेंट है कि वो जो रूडली बिहेव करता है विदाउट रिकॉन्सिलिएशन, और इस तरह मिसेस ओकेंडम से डील नहीं करना चाहिए था, और एक रिकॉन्सिलिएशन का फैक्टर भी इसमें आता है, होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरप्राइजिंग एंडिंग जो हुई वो सही थी, सरप्राइज एंडिंग, या इससे पहले जब उसने बख्श दिया था वो सरप्राइज एंडिंग है? दैट इज ऑल्सो अ डिस्कसिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस फर्दर। होपफुली आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। 20 मिनट्स मिसेस ओकेंडम बाय फ्रैंक आर्थर। सो थैंक यू।